اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کو لائق اور زیبا ہیں۔ میری ساری ہیرا گروپ فیملی کو، میرے سپورٹرز کو جو انصار بن کر آج تک بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آج اللہ کا بہت ہی بڑا فضل اور اللہ کا بہت ہی بڑا کرم اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج میں آپ کو جو میرے ریلیز کے بعد 7واں اپڈیٹ دینا چاہتی ہوں۔ آج کے اپڈیٹ میں سب سے پہلی خوشخبری ہے آپ سب کے لیے اور میرے لیے، تمام ہیرا گروپ کی فیملی کے لیے، کہ الحمدللہ سپریم کورٹ میں آج ہمارا آرگیومنٹس تھا اور سپریم کورٹ میں ڈیٹ تھا، اور سپریم کورٹ میں الحمدللہ 45 منٹ تک ہمارا آرگیومنٹ رہا، اور آرگیومنٹ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو بیل تھی اس کو گرانٹ کر دیا گیا اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ ہماری ریکویسٹ بھی وہی تھی۔ تو اس میں سب سے پہلے سپریم کورٹ میں میرے طرف سے جو اپڈیٹ ہمارے لیگل ٹیم کو میں نے دیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمارے لیگل ٹیم کو اللہ نے سلیکٹ کیا اور کافی اچھے سے وہ لیگلی فائٹ الحمدللہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو بھی بہت زیادہ اجر دے۔ جو بھی لیگل ٹیم جو ہے ماشاءاللہ بہت سٹرانگلی کام کر رہے ہیں۔ اور آج 45 منٹس کا جو آرگیومنٹ تھا، اس آرگیومنٹ میں ہمارے طرف سے یہ پریزنٹیشن تھا، یہ ریکویسٹ تھا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دے دیا کہ ایک ہفتے میں ڈیٹا سبمٹ کرو اور ان کا ڈیٹا سینٹر آن کرو، جو بھی اویلیبلٹی ہے کسٹمر کو چیک کرنے کے لیے، ممبرز کو دیکھنے کے لیے، تو وہ آن کرو۔ تو میں جب 22 کو ریلیز ہوئی تھی، 27 کو ہی میں نے CCS میں اس کا لیٹر جمع کر دیا تھا کہ ہم کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ یہ ڈیٹا سینٹر جو ہے ہم کو ہینڈ اوور کرو، مگر وہ آج تک بھی نہیں ہوا، اور وہاں اس پر نمبر 1 پہ جو ہے وہ آرگیومنٹ ہوا، اور انشاءاللہ اچھا ہی رزلٹ آئے گا کیونکہ ابھی آرڈر ٹوٹلی اپلوڈڈ نہیں ہے، اور الحمدللہ اچھا رزلٹ اللہ کے فضل سے آئے گا، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گائیڈ لائنس ہوں گے جو ہمارا ڈیٹا سینٹر ہمیں ملنے کے لیے۔ پھر نمبر 2 پر جو بھی ED کے تھے اور بہت سارے چیزیں تھے جو ہم کو سپریم کورٹ نے بزنس کو سٹارٹ کرنے کو کہا، مگر ہمیں بیچ بیچ میں جو ہے ایجنسی کے لوگ پریشان کر کے اور اس کو سٹارٹ کرنے نہیں دے رہے تھے۔ تو آج الحمدللہ کافی اچھے آرڈرز ہوں گے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے۔ تو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ اب تمام فیملی کو جو ہیرا گروپ کے ہیں، اللہ کے طرف سے جو ہے الحمدللہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں آگے بڑھنے کی انشاءاللہ اجازت دے دی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور دوسری بات جو یہ رہی کہ اتنے دنوں میں بہت سارے کامنٹس، بہت سارے لوگوں کی باتیں آ رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ جو ہے اس پر کچھ بات کرنا چاہتی ہوں کہ سوالوں میں لوگوں نے یہ کہا کہ ابھی تک جو ہے نان کمپلینٹر کے لیے پیمنٹ کا سلسلہ کیوں نہیں شروع کیا۔ تو میری ہیرا گروپ فیملی، میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جس دن سے آئی تھی اس دن سے میں تیار ہوں۔ اگر ہمارا ڈیٹا سینٹر آن ہو جاتا، میرے پاس لنک ہوتے اور آپ کو میں وہ لنک دے دیتی، آپ اس میں اپڈیٹ کرتے اور میں چیک کر کے ایک پیمنٹ شیڈول کا جو ہے اسٹیپ الحمدللہ لے سکتی تھی، مگر ہم کو نیچا دکھانے کے لیے کئی پریشریں ڈال کر ایسے چیزوں کو جو ہے روکا گیا، مگر اللہ
حق کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی جلدی اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں آسانیاں انشاءاللہ کر دیں گے. اب دوسری بات یہ رہی کہ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کمپلینٹر نان کمپلینٹر کے بیچ میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. تو مجھے یہ میسیج آتے رہتے ہیں کہ لوگ جو ہے ایسوسیشنیں بنا کر ان کے پیپر ان کے ڈاکومنٹ سب کلیئر کرتے ہیں. میں آپ سب سے ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں، یہ جو لوگ ایسوسیشنوں کے اطراف میں، ایجنسیوں کے اطراف میں اور کورٹس کے پاس جو چلے گئے ہیں، ابھی جا بھی رہے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ زیادہ فکر مت کریے، کیونکہ یہ سب ہائپر ٹینشن لوگ ہیں. ہائپر ٹینشن سے ان کی کیا مجبوری ہے پتہ نہیں، کہ لیگل نالج کی بھی ہو سکتا ہے تھوڑی کمی ہوگی، وہ اطراف میں جو ہے جانا سب کچھ کرنا کر رہے ہیں. تو میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ان کو انشاءاللہ کورٹ کے تھرو پیسہ بھی ملے گا، اور کورٹ کے تھرو ان کو ایک آرڈر بھی ملے گا کہ جتنا کمپنی کو نقصان ہوا ہے ان کے نادانیوں کے ذریعے سے، جتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، آخر ایک دن یہ جتنے بھی تکلیف پہنچانے والے ہیں وہ ایک دن انشاءاللہ کورٹ کے نظروں میں آ جائیں گے کہ کمپنی کو صرف تکلیف پہنچانے کا مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا. اور آپ سب کو، نان کمپلینٹرز کو، میں یہ اپڈیٹ دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آج کا آرڈر اللہ کے فضل سے اچھا آیا ہوگا، اور جیسے ہمارا ڈیٹا سینٹر آن ہو جائے گا، چاہے وہ 1 ہفتے میں ہو جائے، 10 دن میں ہو جائے، 2 دن میں ہو جائے، اگر کل بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو لنک آئے گی، اپلیکیشن آئے گا. سب سے پہلے جو یہ کمپلینٹرز ہے تو ہم ان کو تو اس سائٹ میں انٹری بلاک کر دیں گے، کیونکہ اب انہوں تو کورٹ کو چلے گئے، وہ ابھی ہمارے لنک سے اپڈیٹ میں آنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے. تو کورٹ میں ان کو ڈیٹا سبمٹ کرنا ہوگا، کورٹ میں ان کے پروف جمع کرنا ہوگا، کورٹ میں ان کے سارے سرٹیفکیٹ جمع کرنا ہوگا، اور ان کو پروف کر کے پیمنٹ لینا ہوگا جو بھی ہے. اب نان کمپلینٹر جو کھڑے ہیں آج تک میرے ساتھ میں، میرے بھائی، میرے بہن، اور ساتھ میں کھڑے نہیں بلکہ ساتھ دے رہے ہیں آج تک بھی، اور آپ کی جو پریشانی، پیسوں کی بات تو الگ رکھیے، اگر کوئی کچھ مجھے بول دیتے ہیں تو وہ جو آپ کی پریشانی، وہ آپ کا اٹریکٹ ہونا، آپ کا گھنٹوں میں جواب دینا، اس بات کو دیکھ کر میں دل کو بہت اطمینان کرتی ہوں کہ میرے بہت بھائیاں ہیں جو میرا سپورٹ کرتے ہیں، جو بہت بہنیں ہیں جو میرا سپورٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلم نان مسلم بھائیاں بھی میری مدد کرتے ہوئے ویڈیوز ڈالتے ہیں، اور جو بھی ان سے پاسبل ہو سکے وہ کام کرتے ہیں اور حق کو ساتھ دیتے ہیں، اور ایک ہندوستانی ہونے کا وہ وعدہ نبھاتے ہیں الحمدللہ. تو میں اس کے بارے میں بہت ہی خوش ہوں. اب جو نان کمپلینٹر کے لیے اللہ کا فضل ہے کہ ہیرا گروپ کا ڈیٹا جس دن سے آن ہو جائے گا انشاءاللہ اس دن سے آپ کا دروازہ کھل جائے گا، کیونکہ میں کبھی بھی یہ جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹی باتیں کرنا، جو مجھ سے نہیں ہو سکتا ویسا وعدہ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اب ڈیٹا ہی ہمارا آن نہیں ہے. آپ کو لنک بھی دوں گی، آپ اپڈیٹ بھی کریں گے تو میں کیسے چیک کر پاؤں گی؟ IBG نمبر آپ کا انٹر کریں گے، آپ کا ڈیٹا چیک کریں گے کہ آپ کون ہے، کہاں سے ہیں، کب دیے ہیں، کب لیے ہیں، کتنا باقی ہے، کتنا بیلنس ہے، یہ سب کچھ بھی مجھے انشاءاللہ چیک کرنا ہوگا. میرے تمام نان کمپلینٹر بھائیوں اور بہنوں کو جو بھی کمپنی کے ساتھ آج تک جڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں یہ بڑی خوشخبری یہی دے رہی ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد آپ کے لیے الحمدللہ دروازے اللہ کے فضل سے کھل گئے. یہ 40 ڈیز میں میں نے جو کام کیا وہ کام آپ کے ہی لیے تھا، آپ کے لیے دروازے کھلنے کے ہی لیے تھا، آپ کے جو امانتیں جو ہی ادا کرنے کے ہی لیے تھا. اب جو الحمدللہ اپڈیٹ آپ کے سامنے آئے گا، جو لنک آئے گی، اس میں انشاءاللہ 3 آپشن آئیں گے، اور 3 آپشن میں جو کمپنی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک آپشن ہوگا، جو ڈسکنٹینیو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک آپشن ہوگا، اور جو پارشل
कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी ये कंपनी में कुछ पैसे लगाए हैं मगर वो कंपनी से दूर भी जाना नहीं चाहते हैं, अभी वक्तिया तौर पर उनको ज़रूरत है, तकलीफ़ है, तो उन्होंने एक हिस्से का अमाउंट जो है वो लेकर एक हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह जो है बाकी रखकर कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहनों का अल्लाह के फ़ज़ल से जो है इंशाअल्लाह दरवाज़ा खुला है। आज मैं आपको यही बात बताती हूँ कि इंशाअल्लाह जिस दिन CCS हमारा डेटा सेंटर ओपन कर देगी, और ऑलरेडी मैं पहले से ही काम करके पूरी तैयारी रखी हूँ कि किस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह आपको लिंक देना है, उस दिन से हमारे नॉन कंप्लेंटर भाई बहनों का रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा और आप इंशाअल्लाह उसमें IBG के साथ सर्टिफिकेट नंबर के साथ जो है आप रिक्वेस्ट देंगे। अब रिक्वेस्ट देने के बाद आपको इंशाअल्लाह अप्रूवल और पेमेंट शेड्यूल जो है बताया जाएगा। आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किधर भी भागने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह जैसा कंपनी में आप डायरेक्ट आए थे उसी तरह से आप जो है कंटिन्यू डिसकंटिन्यू करने के लिए भी आप कंपनी में डायरेक्ट आ सकते हैं। हाल में बहुत सारे चीज़ें हुए और उसमें लोगों ने ये कहा कि बहन के बोलने से मैंने लगाया है, भाई के बोलने से मैंने लगाया है, रिश्तेदारों के बताने से मैंने लगाया है, मेरे पड़ोसी के बताने से मैंने लगाया है पेमेंट। मेरे भाइयों और बहनों, आप किसके भी कहने से लगाए हो, मगर आपने जो पेमेंट दिया है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के अकाउंट में दिया है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सिंगल साइनिंग अथॉरिटी नौहीरा शेख यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह, वही आपके पेमेंट को अल्लाह के फजल से जो है इंशाअल्लाह क्लियर करेगी। और आपका जब प्रॉफिट भी आता था, आपका बेनिफिट भी आता था, तो बिल्कुल से बिल्कुल जो है सीधा आपके ही अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था, किसी पड़ोसी के अकाउंट में नहीं होता था। यहाँ तक कि शोहर मेंबर है तो बीवी के अकाउंट में नहीं जाता, बीवी मेंबर है तो शोहर के अकाउंट में भी वो पेमेंट नहीं जा सकता। आज भी यही हाल होगा कि कोई बोल रहे हैं कि मेरे पास 20 सर्टिफिकेट हैं, कोई बोल रहे हैं 100 सर्टिफिकेट है, कोई बोल रहे हैं 1000 सर्टिफिकेट है। अरे भाई 50,000 भी सर्टिफिकेट है तो आप सब इंडिविजुअल आए थे, इंडिविजुअल ही मांगेंगे, इंडिविजुअल ही सबमिट करेंगे, इंशाअल्लाह तुमको पेमेंट भी इंडिविजुअल मिलेगा। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि फलाने 12 लोगों का पेमेंट मिलाकर मेरे अकाउंट में दे दो, फलाने 4 लोगों का दे दो। उनका जो हक है वो उनको पहुंचाया जाएगा। इंशाअल्लाह आइंदा कंपनी का जो प्रोसेस होगा यही होगा और कंपनी के जो प्रोसीडिंग्स होंगे अल्हम्दुलिल्लाह यही होंगे अल्लाह के फजल से। और आप रिक्वेस्ट लेके आएंगे इंशाअल्लाह मैंने कहा है कि आखिरी वो इंसान के मांगने तक भी इंशाअल्लाह कंपनी पेमेंट को अल्लाह के फजल से अदा करेगी, क्योंकि लोगों ने प्लान बनाए थे। क्या प्लान बनाए थे आपको बताऊं कि हीरा ग्रुप की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जब मैं आई रिलीज़ होकर जेल से तो मैं देखती हूँ कि कोई घर का ताला तोड़कर ट्रेसपास करके हमारे घर में जाके बैठा हुआ है। कोई अपार्टमेंट हमारे खाली थे तो उन अपार्टमेंटों के फ्लैटों में जाके बैठे हुए हैं। कोई जहाँ पर गोडन अपने जो क्लाथ वगैरह सब कुछ भरे थे वो गोडन को अपनी मर्जी से उन्होंने लॉक ओपन करके वो तमाम चीज़ों को खाली करके और ये बताए हैं। और कुछ लोग हमारे ज़मीनों के ऊपर बग़ैर परमिशन के बग़ैर इसके बिल्डिंगें बना दिए हैं। ये सब क्या था? एक प्लान था कि आप सबको डैमेज करने का। आपकी अमानतें देने की फ़िक्र किसी को भी नहीं थी और मुझे FIR में फंसाकर डिपॉजिटर एक्ट लगा के, डिपॉजिटर एक्ट हमें आता ही नहीं है क्योंकि आपने डिपॉजिट नहीं किया है, आपने यूनिट गोल्ड परचेस किया है, एक प्रोडक्ट वैल्यू पर आपने पेमेंट किया है। ऐसा अनलिमिटेड वैल्यू और बग़ैर सोचे समझे किसी ने भी पेमेंट नहीं किया है। उस वैल्यू की आपको सर्टिफिकेट मिली है, वो वैल्यू कब होल्ड किए ही वो सर्टिफिकेट आपको मिली है। तो इंशाअल्लाह मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि ये प्लान था कि पूरे के पूरा कब्जा कर लेंगे और पूरे जायदादों पर बैठ जाएंगे या कुछ भी एक्ट लगाकर अंदर से कमिटमेंट करके छोटे पैसों को ये सब चीज़ें खरीद कर जो है आप सबको नुकसान पहुंचा देंगे। मगर मैं अल्लाह की पाक ज़ात से दुआ करती थी, ऐ अल्लाह ये मोमिनों का माल है और भरोसा करके तिजारत में लगाए हैं और आप उनके मालों को, उनकी अमानतों को कंपनी के थ्रू उनको पहुंचा देना। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने भी सवालात किए कि कैसे पे करोगी, कैसे दोगी, किस तरह से करेंगे, आपके सोर्सेस क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सील्ड एनवलप हम लोग अपने सोर्सेस कोर्ट को बता चुके हैं अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह। और सारे चीज़ें खबर हैं कोर्ट को कि कंपनी इतने सालों में क्या परफॉर्मेंस की है और कितने मेंबर्स को जो है अपना पेमेंट वापस करी है, कितने मेंबर जो है जो पेमेंट करके भी उनको 2 उतना 3 उतना पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी की तरफ से बैंक के थ्रू मिला है।
आज मैं आप सब से यही गुजारिश करूँगी कि इंशाअल्लाह आज अल्लाह के फजल करम से हमारे ये जितने भी चीज़ें आड़ खड़े थे कंपनी के बीच में, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 90% हट गए हैं। और इंशाअल्लाह अभी डेटा का तो ज़रूर से ज़रूर आर्डर मिलेगा ही मिलेगा कोर्ट से इंशाअल्लाह। तो जब CCS जैसे डेटा सेंटर ओपन हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह वो दूसरे दिन से अल्लाह के फजल करम से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पे आ सकते हैं। मगर मैं फिर से आपको एक बात बताती हूँ कि आप सारे लोगों का लेकर कोई भी इधर नहीं आ सकते। आप इंडिविजुअल कंपनी में सबमिट किए थे रिक्वेस्ट, आप विड्रॉल भी इंडिविजुअल ऐसे ही सबमिट करोगे, डिसकंटिन्यू भी ऐसे ही सबमिट करोगे। इंशाअल्लाह हम जहाँ तक हो सके आपको किधर भी चक्कर लगाने की हम लोग जो है यही नहीं देंगे कि आप चक्कर लगाएं, आप बसों में, ट्रेनों में, फ्लाइटों में सफ़र करें, इधर आएँ उधर आए नहीं। आप जैसे ऑनलाइन पे सबमिट करेंगे और डेटा में हम चेक करके आपको कॉल पे बात करके और एक सेटलमेंट करेंगे, देखिए आपका पेमेंट इतना था, आपको इतना पेमेंट मिला है या इतना पेमेंट हमारे पास है, और आपका इतना प्रोडक्ट आपने परचेस किया था उसका बचा हुआ पेमेंट हमारे पास है, आपने ज्वेलरी में कन्वर्ट कर लिया था इतना बचा हुआ पेमेंट आपके पास है। इंशाअल्लाह ये डेट में इसके अंदर आपको जो है ये पेमेंट अल्लाह के फजल से मिल जाएगा। हाँ, कभी कभी हो सकता है कंपनी अपने हिसाब से ये भी बोल सकती है कि आपका पेमेंट जो है 2 टाइम में हम लोग डिक्लेयर करके इंशाअल्लाह अदा कर देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल से बिल्कुल इंशाअल्लाह कोई भी फिक्र करने की बात नहीं है। हाँ, अब कंपनी रिस्टार्ट होने के लिए वापस कंपनी जो है एक पॉलिसी को फॉर्म करेगी। अब जो आइंदा नए कस्टमर भी कंपनी में आएंगे इंशाअल्लाह उन सबको जो है उस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। अब जो पुराने जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं, कस्टमर हैं, जो भी हैं, इंशाअल्लाह उनको भी अल्लाह के फजल करम से जो है बात करके जो साथ में कंटिन्यू रहना चाहते हैं उनको हम क्या है वो पॉलिसी में कन्वर्ट कर देंगे अल्लाह के फजल करम से। तो मेरा अल्लाह की ज़ात से बहुत बड़ी उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से मुझे बहुत ज़्यादा ये है कि इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप क़ियामत के सुबह तक चलेगी। तुम्हारे और मेरे जाने के बाद भी अल्लाह ताला इसको चलाएंगे, क्योंकि अल्लाह का नाम लेकर इसको मैंने शुरू किया है। अल्लाह ताला इसको कभी भी इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं करेंगे। लोगों ने बहुत चाहा कि मेरे से ये बात को खुबला ले कि मैं अब नहीं दे सकूँगी और मैं हाथ उठा लूँ तो फिर सारे चीज़ों को, बैंकों को, प्रॉपर्टियों को कब्जा कर ले। मैंने ये बातें सब देखकर बड़ी हैरान भी रह गई। कलिमा पढ़ने वाले मोमिन भाइयाँ, जब मैं अंदर चली गई तो कैसे इस तरह के काम कर सकते हैं, अपने घरों में आकर बैठ जाना, अपने प्रॉपर्टियों पे जाना, और जहाँ जहाँ पर हमारी मिनरल वाटर प्लांट थी वहाँ पर जाके वॉचमैनों को डरा कर वहाँ से निकाल देना, और वहाँ का जो भी लॉस होगा अब सब उनके सरों पे ही आएगा जिन्होंने भी ये काम किया है। अब जो भी वहाँ पर लॉस होगा, जो भी फैक्ट्रीज में चीज़ें निकल गए होंगे, सेल हो गए होंगे, जहाँ जहाँ मेरे चीज़ों में लोग आके बैठे ही, हो सकता है कितनी भी वैल्यूबल चीज़ उसके अंदर होगी ज़रूर उनके ही ऊपर वो चीज़ इंशाअल्लाह सबमिट होगी ज़रूर से। क्यों करके बोले तो जब मैं आकर ये मंज़र देखी तो ये मंज़र देख कर जो है कभी मुझे बहुत तकलीफ़ भी हुई, मगर आप फिक्र मत करिए, ये सब चीज़ें हमारे लिए कुछ भी इंशाअल्लाह मतलब नहीं रखते। अल्लाह के फजल करम से हीरा ग्रुप के पास सोर्सेस हैं, हीरा ग्रुप के पास स्ट्रेंथ है, हीरा ग्रुप के पास अल्लाह के तरफ से बरकतें ही। इंशाअल्लाह आपके कोई अमानतों में कोई कुछ नहीं होगा, आपकी अमानतें अदा की जाएगी और बड़े अच्छे अंदाज में अदा की जाएगी। इतने दिन आप पूछते थे कि नॉन कंप्लेंटर्स का क्या है, नॉन कंप्लेंटर्स का क्या है। इंशाअल्लाह नॉन कंप्लेंटर्स का अल्लाह चाहे तो कल से भी शुरू हो सकता है, परसों से भी शुरू हो सकता है, 8 दिन के बाद से भी इंशाअल्लाह पेमेंट्स वगैरह और जो भी अपडेट्स वगैरह आपके लिए लिंक्स वगैरह सब स्टार्ट हो जाएंगे। मगर जैसे डेटा सेंटर ऑन होगा, ये जितने भी कंप्लेंटर हैं सबसे पहले उनको ब्लॉक करके बाद में हम डेटा सेंटर को ऑन करके आपको लिंक करेंगे, ताकि जो भी इंसान हमारे खिलाफ जाकर कोर्ट में वगैरह तो उसको कोर्ट में ही जाने देंगे, हम अपने घर में फिर से दाखिल होने की जगह बिल्कुल से बिल्कुल इंशाअल्लाह नहीं देंगे। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अपडेट भी जो है मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि आपको मेरे तरफ से अपडेट मिले, मेरे तरफ से बातें मिले तो आप इत्मीनान से रहेंगे और सुकून से रहेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो भाइयाँ सपोर्टर हैं वो भी सही मैसेज लेके ही आप तक मैसेज पहुँचाते हैं। जो सपोर्टर भाइयाँ और बहनें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है अल्लाह के फजल से सपोर्ट करते आए हैं। तो मेरे
मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी का दिन है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बेल को जो है वापस टाइम बढ़ाकर हमारे लिए हमारी हिम्मत को और भी बढ़ा दिया है। और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा आर्ग्यूमेंट हुआ है और जजेस अट्रैक्ट भी हुए ही उस आर्ग्यूमेंट पे कि ये यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ, मैं मेरे अकाउंट्स को डीफ्रीज करो और मैं जो है मेरे लोगों को पेमेंट कर देना चाहती हूँ, मेरे डेटा सेंटर को ओपन करो। और मुझे जो है इस तरह से बांध के रखकर और कहेंगे कि दे दो, तो ऐसा तो कैसे पॉसिबल होगा। फिर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बांध के रखने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स थे उसको मैंने कंप्लीट किया है। भले कुछ तकलीफ उठा के, कुछ परेशानियां उठा के, सब चीज़ों को मैंने कंप्लीट किया है। कंप्लीट करके मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर हुई हूँ। देखिए, मैंने ये आपने जो टर्म्स कंडीशन दिए थे उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आगे जाकर मेरी कंपनी को सारे चीज़ों को रिलीज करिए और मैं मेरे लोगों को, मेरे नॉन कंप्लेंटर जो मेरे साथ खड़े हैं, उन सबको पेमेंट देना है। हाँ, मैं कंप्लेंटरों का भी अमाउंट जो है मैंने कोर्ट में जमा कर दिया है और मैं बैलेंस वाले अकाउंट से जमा किया है, नॉन बैलेंस के अकाउंट से मैंने पेमेंट जमा नहीं किया है। हाँ, अब वो अथॉरिटीज जाने जिन्होंने अटैच किया है और कोर्ट जाने वो कि अटैचमेंट के बाद उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कंप्लेंटर का पेमेंट जो चेक जमा किए हैं वो बैलेंस वाले अकाउंट्स में जमा किया है। ऐसा नहीं कि खाली अकाउंट के चेक किसी को दे दिए हैं और वो पैसा होल्ड भी हो जाएगा, वो पैसा होल्ड भी हो जाएगा जो मैंने जमा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आप सबसे बस यही गुजारिश करना चाहूँगी, अब थोड़ा इंतज़ार और इत्मीनान, क्योंकि 2 साल 3 महीने, 2 साल 4-5 महीने आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत ही परेशानियाँ उठाई हैं। अब इंशाअल्लाह वो वक्त अल्लाह के फजल से बहुत करीब है कि आप सबकी अमानतें आप तक इंशाअल्लाह पहुँचेंगे और आप सबको इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। बाद में ही मैं ये काम को कंप्लीट करने के बाद ही मैं इंशाअल्लाह कुछ भी अपना प्रोसेस करूँगी, क्योंकि मुझे आप सबकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। अब जो लोग जो है कुछ भी खोल कर बैठे हैं, पेपरें ले लें, जमा कर लें, उनको घूमने दो, SFIO को जाने दो, कोर्ट को जाने दो और कहाँ कहाँ जाती उनको जाने दो। उसके बाद जो नुकसान कंपनी को भी पहुँचा है उनके ज़रिए से, FIRs करा के फीचे के ज़रिए से इन्होंने हमारे प्रॉपर्टियों को डैमेज करने का, हमारे प्रॉपर्टियों में बैठने का अंदर जाकर, और जब हम नहीं थे हमारे घरों के लॉक खोल के जाके उसके अंदर बैठना और हमारे ऑफिसेस में बैठना और हमारे मार्ट में घुसना और हमारे मिनरल वाटर फैक्ट्रियों में जाना, ये सब कुछ काम किए ही। वहाँ के जो भी लॉसेस हैं सब के ऊपर वो चार्ज ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। और हमने सुप्रीम कोर्ट के भी नज़र में ये अपडेट दे दिया है कि यहाँ पर हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है इस तरह से करके। मगर आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामयाबी अता करेगा ज़रूर से इंशाअल्लाह। और बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह आप खुशखबरी सुनेंगे कि जैसे CCS डेटा सेंटर हमारा ओपन कर देगी तो 1-2-3 दिन का काम रहेगा, उसके बाद से इंशाअल्लाह हमारे सारे ऑफिस में काम इंशाअल्लाह शुरू हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं मुंबई को भी अल्लाह के फजल से हमारी जो ऑफिस है मैं विज़िट करूंगी और वहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, वहाँ पर इंशाअल्लाह मैं थोड़े दिन इंशाअल्लाह ये करूँगी। और हैदराबाद की भी ऑफिस में इंशाअल्लाह मैं ये करूँगी और तिरुपति में भी इंशाअल्लाह मैं अपनी कॉलेज में अल्लाह के फजल से जाकर जो है मैं वहाँ के लोगों को तकलीफ़ देना नहीं चाहती हूँ, जो बहुत ही तड़प रहे हैं मुझे मिलने के लिए। मुझे मालूम है आपकी परेशानी, और मेरे एक छोटे वीडियो को आपने इज्जत दी कि मैंने कहा 40 दिन जो है जो टाइम मिला है वो मुझे फ्री से छोड़ दो, मैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम काम को जो है कंप्लीट करना है। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा, आपने उस बात को माना, मुझे परेशान नहीं किया। अब मैं इंशाअल्लाह आपके बारे में मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आप सबसे मुलाकात करूँ इंशाअल्लाह, मुंबई में और हैदराबाद में और तिरुपति में इंशाअल्लाह। इस दौर में मैं वो विज़िट भी आप सबके कर लूँगी इंशाअल्लाह। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम बैठ कर भी इंशाअल्लाह बहुत सारे मसलों को, मसाइल को हल करते हैं अल्लाह के फजल से। आप ये कंप्लेंटरों की ज़्यादा फिक्र मत ले लीजिए, आप इंशाअल्लाह आप देखते रहिए कि आगे आगे क्या होगा। अल्लाह के फजल से सबको भी पता चलेगा कि नाहक के साथ लोगों को फंसाना क्या होता है और हक की जीत कैसे होती है। हक इंशाअल्लाह उसको कितना भी दबाया जाए और उसके ऊपर कितने इल्ज़ाम भी लगा दिया जाए, अल्लाह ताला उसको ज़रूर कामयाब इंशाअल्लाह करेंगे। मेरी नीयत पाक है, मेरी नीयत देने की है, मेरी नीयत आपकी अमानतें अदा करने की है। मुझे आपके साथ रहकर और इंशाअल्लाह बिजनेस करने की नीयत है, तिजारत करने की नीयत है। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अहकामात पर चलकर आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं वही अहकामात पे चलती हूँ। मैं आपको
ایک بات بتاؤں کہ میں نے کوچین میں ایک 4 اسٹار ہوٹل خریدی تھی، ایک 4 اسٹار ہوٹل خریدی تھی کوچین میں، تو وہ ہوٹل کو میں 4 سال اس لیے بند کر کے رکھی ہوں کہ جس میں بار کا پرمیشن ہے، میں وہ نہیں چلا سکتی اور وہ حرام ہے۔ اگر میں رینٹ کو بھی دوں گی، لیز کو بھی دوں گی، اگر وہ چلائیں گے تو وہ ناجائز ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں اس کو بند کر کے رکھا ہے۔ میں نے کہیں بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کام سے میرا رب ناراض ہو جائے، میں آج بھی کبھی وہ کام نہیں کروں گی جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، اور میں اللہ کی رضامندی کی پوری کوشش کر کے ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کا، ہندوستان کا جو لا ہے، اس کو میں فالو کرتی ہوئی اللہ کے فضل سے چلی ہوں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ میں اس پر ہی چلنا چاہتی ہوں، اور میں ضرور جو ہے آپ سب کو پھر سے ایک بار مبارکبادی پیش کرتی ہوں، اور میں ضرور سے ہمارے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا اور جو ہماری لا ہے اس لا کا جو ہے میں سیلوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ لا میں جو ہے ہم اتنے زیادہ پروٹیکٹ ہیں، اتنے زیادہ سیف ہیں، اللہ کے فضل سے ہم کو کہیں بھی جو ہے کسی طرح کا بھی نقصان لا ہونے کے لیے نہیں دیتا، اور وہ سچائی کو دیکھتا ہے، سچائی کو چیک کرتے ہیں، سچائی کو چیک کر کے وہ سٹیپ لیتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے ہر سٹیپ پہ میں راضی ہوں، جو بھی وہ آرڈرز انشاءاللہ دیتے ہیں اس پر میں یہ ہوں۔ بس الحمدللہ اب میرے ہاتھ میں اب ڈیٹا نہیں ہے، اکاؤنٹس نہیں ہے، تو میں کوئی بھی پیمنٹس کے شیڈول کیسے شروع کروں؟ میری کوئی اس میں غلطی نہیں ہے کہ میں نے تو لیٹرز دے دیا ہے، میں نے مانگا ہے کہ میرے اکاؤنٹ کو ڈی فریز کرو اور میرے ڈیٹا کو جو ہے انشاءاللہ مجھے اوپن کرو کہ میرے کسٹمر کو مجھے پیمنٹس کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ سب ہم نے سپریم کورٹ میں بھی سبمٹ کر دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوشیاں دے، آپ سب کے تمام تکلیفات اللہ ایسے آسان کر دے جیسے وہ 6 دن میں زمین اور آسمان بنا کر عرش پہ قائم ہو گیا، ویسے ہی ہیرا گروپ کے تمام پریشانیوں کو آپ سب کے اللہ تعالیٰ امانت داریوں کو ویسے ہی پلک جھپکنے کے برابر میں آپ کے اکاؤنٹس میں پیمنٹس آ جائے، میں یہی خواہش کروں گی، یہی دعا کروں گی آپ سب کو، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب میرے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے فضل سے آگے چل کر ہیرا گروپ کو جو ہے پھر سے ایک بار آگے بڑھا کر انشاءاللہ ورلڈ میں اس کو ایک نمبر کی ایک مشہور کمپنی، ایک ٹرسٹیبل کمپنی بنا کر انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔